The Voice of Rain. Welcome everyone, welcome back to this online session. We are again here with the Hornbill book of class 11th and today we will see poem number 3. Let's get into it. Poem number 3 is The Voice of Rain. It's written by Walt Whitman. As the name itself indicates, एक रेन की आवाज़ है, तो रेन क्या कहेगी? अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो इट्स वाटर साइकिल विच इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम, बट इट इज डिस्क्राइब्ड इन एन इमेजिनरी डायलॉग फॉर्म. लेट्स सी व्हाट इट इज. Before getting into, let's see about something about Walt Whitman. Two very specific things that you need to see is, one, he was born on 31st May 1819 and he died in 1892 March 26. He was an American poet. He also used to write essays and also he did some journalism. Also what you have to notice is he was called the father of free verse. Free verse means उन्होंने अपनी पोएम किसी राइम स्कीम को फॉलो करके नहीं लिखी है, फ्री वर्स में लिखी है, जो कि एक लाइन बाय लाइन सीक्वेंशियली चलता रहता है, एक लाइन दूसरे लाइन में जाकर कंटिन्यू होता है. दिस इज द पोएट, दिस इज योर पोएट, यू कैन सी Walt Whitman. Introduction of the poem. The poem Voice of the Rain is written by Walt Whitman, as we have seen. It is conversational poem between the poet and rain. तो poet जो है वो किससे बात कर रहे हैं? रेन से बात कर रहे हैं. और ये जो रेन है वो अपनी जर्नी एक्सप्लेन करती है, कैसे उनकी इटर्नल नेवर एंडिंग जर्नी है, कैसे वो अर्थ से राइज करके फिर स्काई में जाती है और फिर वहाँ से फिर से अर्थ पे आती है. सो बेसिकली वाटर साइकिल जो है वो इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है. जैसे कि वॉल्टमैन की बाकी सारी पोएम्स होती हैं फ्री वर्स में, ये पोएम भी फ्री वर्स में लिखी हुई है. ये वन स्टैंजा से बनी हुई है, अलग अलग लाइन्स है इसमें. जो फर्स्ट 2 लाइन्स है उसमें पोएट है वो क्वेश्चन करता है रेन से और बहुत सरप्राइज हो जाता है कि रेन जो है आंसर देती है. अगली 6 लाइनें वो क्या है? आंसर है, जो कि रेन का है, आवाज़ है, रेन आंसर कर रही है पोएट को. और बाकी की जो फाइनल लाइन है वो एक ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में दिया हुआ है, वो आत्मकथा सॉर्ट ऑफ है. जो डिफरेंस है, जहाँ वो डायलॉग फॉर्म में है ना वो कन्वर्सेशन है, वो एक अलग से लाइन है जो रेन खुद से कहना चाहती है, इटर्नली कहना चाहती है. सो लेट अस सी द वॉइस ऑफ द रेन. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द पोएम शुरू करने से पहले, जैसा कि हमने देखा इंट्रोडक्शन में, दैट द रेन itself says कि कैसे आई राइज फ्रॉम द अर्थ एंड आई गिव बैक लाइफ टू द अर्थ. तो यहाँ पे दिस एनिमेटेड वीडियो शोज हाउ the water is rising, is evaporating and rising, and it thus goes to the sky and it condenses and forms cloud. As you can see in the video, it's forming clouds. Thereafter, when these clouds are full, then the raindrops start falling and again it comes back to the earth. तो पोएम में भी यही है कि कैसे जो रेन है वो राइज करता है फ्रॉम द अर्थ एंड बॉटमलेस सी एंड इट गोज बैक, it goes to the sky and comes back again to the earth. So let's see the theme and the poem. बिफोर सीइंग ऑफ कोर्स व्हाट इट कैन बी द थीम ऑफ द पोएम, जैसे कि इंट्रोडक्शन देखा आपने तो थीम ऑफ कोर्स वाटर साइकिल है. कैसे रेन जो है वो इमर्ज करती है, कहाँ से इमर्ज करती है? फ्रॉम द हार्ट ऑफ द सी. Thereafter it soars with the breeze and thereafter it goes to the sky and after that it forms cloud and it again comes back where it again comes back to the earth. It gives life to the things on earth. So the major theme of this is the fulfillment of like responsibility, what the rain fulfills, how it goes from the earth, it rises into the heaven, it forms cloud, again it comes back to the earth again. So this is what is described in this poem. So how rain comes back and gives life and freshness to this earth, that is what is described. So let's get into the poem. So this is the poem. Actually I thought of finding this poem a lot, but I couldn't find it anywhere, so I had to take this from internet. So here's one spelling mistake also here. Drought's spelling is like missing. Let's see the poem. The Voice of the Rain. And who art thou, said I to the soft falling shower. Who art thou? Who art means are, thou means you. कौन है आप? सेड आई, मैंने कहा, किसे कहा? सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर. जो सॉफ्टली शावर फॉल हो रहा था, जो रेन फॉल हो रही थी, उससे मैंने पूछा हु आर द, विच स्ट्रेंज टू टेल gave me an answer, which gave me an answer, and that poet is finding very strange to tell. बहुत अजीब लग रहा है पोएट को कहते हुए कि उस रेन ने मुझे आंसर किया. And here
ट्रांसलेटेड, और वो जो आंसर है वो पोएट ने इस तरह से ट्रांसलेट किया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। जो वॉइस ऑफ द रेन है उसने क्या कहा, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं इस अर्थ की पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। इम्पैल्पेबल मीन्स आउट ऑफ फॉर्म। जब हम अर्थ से राइज करते हैं तो वो फॉर्म जैसे पहले लिक्विड होता है, फिर कैसे गैसेस बन जाता है, और फिर क्लाउड के फॉर्म में मोस्टली वो जो कि गैस होता है बट सॉलिडिफाइड लगता है। तो कह रहे हैं कि जो मेरा नेचर है दैट इज़ नॉट कम्प्लीटली, यू कांट डिस्क्राइब इट। इटर्नली नेवर एंडिंग आई राइज, कभी नहीं ये एंड होता है, ये जो साइकिल है ये कभी नहीं एंड होता है, इटर्नल होता है, चलता रहता है। और आई राइज फ्रॉम द अर्थ इम्पैल्पेबल शेपलेस फॉर्मलेस, ये अर्थ से लैंड से राइज होती हैं, और कहाँ से राइज होती हैं, बॉटमलेस सी, जो सी जिसका कहीं अंत नहीं है, उस सी से भी ये राइज होती हैं। अपवर्ड टू हेवन, और कहाँ जाती हैं, हेवन में जाती है। वेंस, वेंस मीन्स वहाँ पे जहाँ, वेयर वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड येट द सेम, एक डिफरेंट फॉर्म ये जो है वो धारण कर लेती हैं, जो है डिफरेंट फॉर्म इट टेक्स एक्चुअली, ऑल टुगेदर चेंज्ड एंड गेट द सेम। जो फॉर्म है अभी, जो वेपर फॉर्म था वो ऑलमोस्ट चेंज हो गया है क्लाउड की तरह, बट अगर आप देखें तो इट इज़ द सेम। जो क्लाउड भी है वो भी क्या है, गैशियस है, बट जो देखने का अपीयरेंस है दैट इज चेंज। Upward to heaven, Venus vaguely formed, altogether changed and yet the same. I descend to lave the droughts. See, this spelling of droughts is, that's what I said, because I couldn't find the book, so I had to take it from internet. तो ये spelling droughts की spelling होगी DROUGHTS. I descend to lave the droughts, और descend means नीचे आना, और ये वापस से नीचे आते हैं। I descend to lave the droughts, जो droughts है, जो सूखा है, जो सूखा पड़ गया उसको शांत करना। lave means टू फीड, लाइफ देना, दोबारा से उसको जीवित कर देना, टू मेक इट अलाइव। ड्राउट्स, अटॉमीज, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, डस्ट लेयर्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं एयर्स में, उसको सेटल करते हुए आते हैं, और जो डस्ट लेयर है, जो जमी हुई हवा में धूल उड़ रही है, उसको सेटल करते हैं ग्लोब पे। और ये सब काम करते हुए ये जो रेन है वो फिर से कहाँ आ जाती है, नीचे आ जाती है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, और वो जो मेरे बिना अभी तक अर्थ में क्या थी, सीड्स थी, सिर्फ मिट्टी में जो अभी तक सिर्फ बीज थे। ओनली लेटेंट अनबॉर्न, जो अभी तक लेटेंट थी, अनबॉर्न थी, जिसके अंदर अभी तक लाइफ नहीं आई थी, उनको भी सबको ये क्या करता है, लाइफ देता है। जब सीड्स को पानी मिलता है, रेन मिलता है, तभी तो वो प्लांट्स में चेंज होती है। सो ना सिर्फ ये एनवायरनमेंट को सही करता है, बल्कि बहुत सारे जो ये इस अर्थ पे पार्टिकल्स, बहुत सारे लाइफ है जो लाइफलेस है, उसको लाइफ भी देता है। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, और ऐसे ही हमेशा के लिए ये चलती है, बाई डे एंड नाइट। इनको ना दिन का पता है ना रात का पता है, बाई डे एंड नाइट इट कंटिन्यूसली दिस साइकिल गोज ऑन, वाटर साइकिल जो है वो चलता रहता है। और ये वापस ऊपर जाती हैं, और जहाँ से इनका ओरिजिन है, जो इनका जहाँ से फॉर्मेशन हुआ है, उसी को ये क्या करती हैं, दोबारा लाइफ देती हैं। तो जहाँ से ये इनका ओरिजिन है, जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है, उसी को दोबारा आकर लाइफ देना। सो दिस इज़ व्हाट द नेचर ऑफ रेन इज़, एंड इट्स वेरी ब्यूटिफुल एज इट इज सेड, सी, एंड मे प्यूरिफाई एंड ब्यूटिफाई इट। सो कितना इंपॉर्टेंस है रेन का, जो जहाँ से निकला है, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वहीं को वापस आकर लाइफ देना, इट्स अ बिग थिंग। और ये जो एनवायरनमेंट है उसको प्योरीफाई करती है, ब्यूटीफाई करती है, जैसे रेन के बाद कैसे सब कुछ ब्यूटीफुल सा हो जाता है। सो दीज 6 लाइन्स आर व्हाट द रेन हैज सेड। और ये जो ब्रैकेट में लास्ट लाइन है, फॉर सॉन्ग, ये पोएट बताते हैं जैसे सॉन्ग होता है, इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस। सॉन्ग कोई किसी ने गाया, लिखा किसी ने, गाया किसी ने, और वो अपने बर्थ प्लेस से ओरिजिनेट हो जाता है, किसी ने गाया और वो सॉन्ग निकल जाता है वहाँ से। आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, वो सॉन्ग जिसको जिसको सुनना होता है सबके पास जाता है, सबके अंदर फुलफिलमेंट देता है, सबको खुशी देता है, जो भी उसका पर्पस है वो पर्पस सर्व करता है। वॉन्डरिंग, इधर उधर सब जगह जाता है सॉन्ग, हर कोई सुनता है। रेग्ड और अनरेग्ड, कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। रेग्ड मीन्स नोटिस्ड और केयर्ड अबाउट, कुछ लोग नोटिस करते हैं, कुछ लोग इंपॉर्टेंस देते हैं। और अनरेग्ड, कुछ लोग नोटिस भी नहीं करते हैं। बट जो सॉन्ग है वो ड्यूली, विद ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल लव, इट रिटर्न्स, वो फिर से कहाँ जाता है, अपने ओरिजिन के पास वापस आ जाता है। क्योंकि गाना कोई भी सुने, अगर पूछा जाएगा गाया कौन, तो
उसके सिंगर का, उसके जो ओरिजिनेट जहाँ से हुआ है उसका नाम आएगा। ऐसे अर्थ है, वो चाहे पूरी अर्थ पूरी हेवन तक घूम के वापस आता है, फिर भी आता तो अर्थ के पास ही है। सो इट इज़ कंपेयर, द रेन इज कंपेयर टू सॉन्ग, एज द सॉन्ग ओरिजिनेट वॉन्डर्स एंड फुलफिल्स, गिव्स हैप्पीनेस, पैसिफाइज एवरीवन, गिव्स लाइफ। ऐसे ही रेन है, इट गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग, इट मेक्स एनवायरमेंट प्योर, इट ब्यूटिफाइज इट, और फिर से कहाँ जाता है, अपने ओरिजिन के पास वापस आ जाता है। द रेन कम्स टू द अर्थ अगेन। These are the meanings you can see. You can pause and write even if you want. Now the poetic devices. The first poetic device is personification of the rain. Rain तो बोलेगा नहीं, but still कहा गया है I am the poem of the earth. So simple as that, personification. Second, metaphor. पोएम ऑफ द अर्थ किसको बोला गया है, डायरेक्टली रेन को किससे कंपेयर किया गया है, पोएम से कंपेयर किया गया है, पोएम ऑफ द अर्थ से कंपेयर किया गया है। देखिए जैसे पोएम है या सॉन्ग है, दोनों कैसे होता है, अपने जो जहाँ से निकला है वहाँ वापस आ जाता है, वैसे ये भी है, जो रेन है जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहीं वापस आ जाता है। इसीलिए स्टार्टिंग में ये कहा गया है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। जैसे एक पोएट के लिए उसकी पोएम होती है, एक सिंगर के लिए उसका सॉन्ग होता है, वैसे अर्थ के लिए क्या है, रेन है। हाइपरबोल जब किसी चीज़ को एग्जैजरेट किया जाता है, ओवर दिखाया जाता है, तो यहाँ पे क्या एग्जैजरेट किया गया है, सी को। सी इतना अनंत है, इतना एंडलेस है कि उसका कोई बॉटम नहीं है, बॉटमलेस सी। इमेजरी, विजुअल डिस्क्रिप्शन। इमेजरी मतलब कब कोई चीज़ जब पोएम में ऐसे लिखी जाती है जिसको पढ़ने में आप इमेजिन कर सको उसको, तो उसको इमेजरी बोलते हैं। जैसे सॉफ्ट फॉलिंग शावर ऑफ द रेन कहा गया है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत धीरे धीरे सी बारिश हो रही थी। समरी, यू कैन पॉज ऑफ कोर्स एंड राइट द समरी। सी, पहले पोएम पोएट पूछता है, फिर स्ट्रेंजली जो है वो रेन आंसर करती है, फिर बताती है कैसे वो लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाती है, फिर कंडेंस होकर क्लाउड बन जाती है, और उसके बाद फिर से लिक्विड फॉर्म में रेन की तरह वापस अर्थ को आती है। जितने भी ड्राउट्स हैं, जहाँ पे भी सूखा हो गया है वहाँ पे भी लाइफ देती है, सब चीज़ ब्यूटीफाई करती है। जो डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा हैं जिसकी वजह से एनवायरनमेंट इम्प्योर है, उसको सेटल डाउन करके एनवायरनमेंट को प्योर करती है। जितने भी सीड्स हैं जो पड़े हुए हैं ग्राउंड में, उसको लाइफ देती है एंड हेल्प्स द प्लांट टू grow. The rain doesn't care whether anybody has noticed it or not noticed it, anybody felt good or not, it just comes back to its originator, its origin earth. These are the question answer. There are two voices in the rain, as you know, there are two voices. One is the voice of the poet, another is the voice of the rain. How do you know that? See, we know that by the first line which poet asked, who art thou, and the reply which poet got, I am the poem of the earth. What does the phrase strange to tell means? Strange to tell means the reply that the poet got of his question from the rain, that was strange. That's all. Of course, you have to again make 5 questions of extract based. One extract you can find out and you can make questions from it. Make theme based question, make long answer question. Do all this, at least 10 questions you have to make. It will clarify, and this poem is very beautiful. You can go through it and again and you can bring out theme in it. आप इसको और beautifully इसमें से theme extract करके और theme लिखिए. All the best. Hope you had understood it well. Thank you. Have a good day.